Okay, this is the second video of class 9 science chapter 1 matter in our surroundings. Change of states of matter. What is the meaning of that? States solid, liquid, gas. We are not going to discuss about other two states, plasma and Bose-Einstein condensate. Okay, that you will learn in higher standard if you go for science. Then now today we are going to discuss the change of states of matter, solid say liquid or liquid say gas. Many phenomena are involved in this. Matters can be changed from one state to another state. A solid can be changed into liquid, liquid can be changed into gas. Most of the metals which are solid turn into liquid on heating and turn into vapor on further heating. So the change of states of matter depends mainly on two factors. These two factors are temperature and pressure. ये mainly दो चीजों पर डिपेंड करता है change of states of matter, temperature and pressure. Effects of temperature on states of matter. टेम्परेचर का क्या असर होता है मैटर के बारे में? सिंपल आप समझ लीजिए. When we heat the solid, हम लोगों ने पढ़ा है कि all matter are made up of particles. जो आप सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करता था वो तेजी के साथ वाइब्रेट करने लगता है. वाइब्रेट करते करते एक दूसरे से दूर चला जाता है. इतना दूर चला जाता है कि उसके जो स्पेस हैं वो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उसके स्पेस के बराबर हो जाता है और वो फ्लो करने लगता है. फ्लो मतलब जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस एज कंपेयर टू सॉलिड, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. Solids changes into liquid with increase in temperature और liquid changes into gas by increasing temperature. तो solid को जब हम heat करेंगे liquid बन जाएगा and liquid को जब हम heat करेंगे तो वो gas बन जाएगा. Similarly, gas को जब आप cool करेंगे gas changes into liquid by decrease in temperature and liquid changes into solid by further decrease in temperature. So on increasing temperature, ice changes into water, solid liquid में, and water changes into vapor, liquid gas में. Decrease करेंगे जब temperature, just opposite, vapor, gas will change into water, और जब water को और ज़्यादा temperature कम करेंगे water का, then water changes into ice. So ice, solid to liquid water to gas vapor. On increasing temperature. On decreasing temperature, vapor, gas to water, liquid to ice, solid. Reason, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया. On heating, the particles of solid get more kinetic energy. You will discuss about kinetic energy. दौड़ने के चलते, भागने के चलते जो एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. मौसम के चलते जो एनर्जी होता है तो उसमें तेजी के साथ मौसम उसका बढ़ जाता है पार्टिकल्स का. सो दे गेट मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे स्टार्ट मूविंग रैपिडली. Further, the space between the particles increase. The force of जब space बढ़ जाएगा, force of attraction अपने आप कम हो जाएगा. The kinetic energy of particles and space between them become similar to liquid और liquid का जैसा होता है वैसा बन जाता है. Then the solid changes into liquid और solid liquid में change हो जाता है. जब liquid को heat करते हैं, then liquid particles will get more kinetic energy and they start moving more rapidly. The increase in temperature increases the kinetic energy of particles of liquid and the space between them. Similarly, liquid जैसे solid के साथ हुआ वही liquid के साथ होगा. The force of attraction between the particles decreases. The kinetic energy of particles and space between them becomes similar to gas. gas के बराबर जैसा हो जाता है. And then the liquid changes into then liquid changes into gas. तो वो gas में change हो जाता है. So these are the effect of temperature. Now pressure के बारे में. प्रेशर देखिए ये गैस है. अब गैस को प्रेशर देंगे लिक्विड बन जाएगा. अजीब लगता है सुनने में. गैस को दबा करके लिक्विड बनाया जा सकता है क्या? बनता है. आप देखते होंगे ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है जो सप्लाई किया जाता है हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी के लिए. आपके घर में जो गैस गैस सप्लाई होता है सिलेंडर में, दैट इज ऑल्सो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. गैस है कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया. ठंडा करके जैसे मैटर को गर्म करके जैसे सॉलिड को लिक्विड बनाते हैं तो ठंडा करके गैस को भी लिक्विड बना देते हैं. सॉरी अब ये
इसी तरह से प्रेशर को जब हम गैस में ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो पार्टिकल्स और नजदीक आ जाएगा और लिक्विड जैसा हो जाएगा जितना स्पेस होता है, सो इट विल कन्वर्टेड इन लिक्विड, और इफ यू कंप्रेस लिक्विड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ये जो सिलेंडर है, ओके, दिस आल्सो लिक्विड फॉर्म में पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, प्रेशर में। इसीलिए जब इसको हम खोलते हैं तो प्रेशर अचानक कम हो जाता है, जब आपके गैस स्टोव तक आता है गैस तो वह गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें लिक्विड है, जब आप खोलते हैं प्रेशर कम हो गया तो हम गैस में कन्वर्ट हो गया, प्रेशर कम हो जाएगा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। सो ये इसी नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कभी सोचे? ओके, सोचिए। सॉलिड, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। सॉलिड पर प्रेशर का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बेचारा टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। Solids are non-compressible. Solids cannot be compressed as there is no space between their particles which could allow compression. Space बहुत negligible space होता है तो compression को allow नहीं करता है, उससे कम जगह नहीं। वो क्या होगा? When the pressure is increased on a solid, it is deformed and finally broken. लिक्विड के साथ भी यही हाल है, लिक्विड में स्पेस तो होता है लेकिन इतना स्पेस नहीं होता है कि हम उसको कंप्रेस कर सकें। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन लिक्विड आल्सो। लिक्विड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता है, प्रेशराइज नहीं, प्रेशर नहीं किया जा सकता। That is, liquids cannot be compressed since there is not enough space between their particles to get compressed. The volume of gas decreases with increase in pressure. बहुत स्पेस होता है, जितना कम करना से मैक्सिमम कम करते जाइए। ज्यादा कम करेंगे तो बेचारा लिक्विड बन जाएगा और ज्यादा कम करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, लेकिन वो जितना कम करना है कम कर सकते हैं, कंप्रेस आराम से हो जाता है। Since there is lot of space between the particles, gas is highly compressed. So large volume of gas can be compressed to a small volume. Because of this nature, high compressibility, gas is transported easily after compressed to a small volume in cylinders. Natural gas is compressed to a small volume and it is packed in cylinder. And it is widely used as fuel in vehicles because of compression. It is known as compressed, क्या compressed? Natural gas. Natural gas को compress किया गया है तो CNG. Simply we can say. Oxygen is compressed and packed in a small cylinder which is used to save life in hospitals. On increasing more pressure, gas turns into liquid. The liquefaction of gas by increasing of pressure. Liquefaction of gas. What is the meaning of liquefaction of gas? By increasing of pressure. Pressure को जब आप बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड बन जाएगा, सिंपल। लेकिन इतना आसान नहीं है, जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो एक और उसको साथ चाहिए, साथ देने वाला टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सो यू कैन से व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, डिक्रीज द टेम्परेचर, गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। This process is known as liquefaction of gases. Liquefaction of gas. Petroleum gas is compressed to a small volume. At more pressure, it turns into liquid. After that, it is packed into cylinder. This is used widely as fuel to cook food in households. Compressed natural gas. Okay, हमने वही पढ़ा है. Okay, compressed petroleum gas is commonly known as LPG, जो घर में यूज किया जाता है. Liquefied petrol, since it turns into liquid form. On further increase in pressure, gas turns into solid. One example. What is this? You look up. This is not water. Ice. This is the ice of carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide गैस का जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं बहुत ज्यादा, then it is converted into solid directly. Liquid बनता ही नहीं है. Carbon dioxide is gas turns into solid on high pressure. Solid carbon dioxide gas is also known as dry ice. क्यों ड्राई आइस? जब ये मेल्ट नहीं करता है, ये पानी में कन्वर्ट, वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, जो सॉलिड होता है जब वह टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे इट विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू CO2 गैस. सो इट इज नोन एज ड्राई आइस. आइस एंड ड्राई संभव है क्या? बट इट इज नोन एज ड्राई आइस because it is not converted into liquid state. It is used in the storage of food. On decrease in pressure, liquefied gas turns into solid gas. Okay. On decrease in pressure, gas turns liquefied gas जो liquid बना हुआ turns into gas. Solid carbon dioxide turns into gas without changing into liquid on decrease in pressure and increase of temperature.
यूनिट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट ऑफ टेम्परेचर? डिस्टेंस कितना है बोलेंगे तो 2 किलोमीटर यूनिट है डिस्टेंस का। ओके, पेज का लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है। टाइम कितना हो रहा है? ओके, हाउ मेनी आवर्स, आवर्स, मिनट, सेकेंड, ये टाइम का यूनिट। सिमिलरली टेम्परेचर का भी यूनिट होता है। जब किसी को फीवर होता है वी कैन से उसका फीवर कितना है, टेम्परेचर कितना है बॉडी का, 98.6, 98 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्लिनिकल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट बताता है। सो डिग्री सेल्सियस, डिग्री में भी व्हाट डिग्री यूज करते हैं हम लोग, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, केल्विन यूज करते हैं। बोले इतने सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मीटर होता है, इंच होता है, सेंटीमीटर होता है, डिफरेंट फॉर्म हुआ है। सो अब है, यदि वाटर बॉयल कर रहा है, वाटर जब बॉयल कर रहा है उसको टेम्परेचर लेने के लिए यदि हमारे पास में सेल्सियस स्केल है, इंस्ट्रूमेंट जो डिग्री में बताता है तो बताएगा 100 डिग्री है। फ़ारेनहाइट है जिसमें फीवर लिया जाता है, वो डालेगा तो बोलेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और केल्विन भी एक होता है, उसको डालेंगे तो बताएगा 373 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब जब आइस रहता है, आइस जब आइस में वाटर चेंज हो, वाटर व्हेन चेंजेस इनटू आइस, जब उस समय डालेंगे तो वह 0 डिग्री सेल्सियस बताएगा। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री, केल्विन 273 केल्विन, एंड दिस इज द एसआई यूनिट केल्विन। ऐसा यूनिट में तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं, जो साइंस का बुक है टेम्परेचर के, वो टेम्परेचर को केल्विन में ही लिखते हैं ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो यूएसए जाए पढ़ने के लिए, यूके जाए पढ़ने के लिए, इंडिया पढ़े। सो केल्विन जहां लिखा है समझ जाएगा टेम्परेचर ये यूज किया गया। ओके, द सिंबल ऑफ केल्विन इज के। देखो यहाँ पर डिग्री नहीं लगा हुआ है, सिंपली वी कैन से दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट 373 केल्विन, नॉट डिग्री केल्विन, वी कैन नॉट से दैट। ओके, ये फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन है, मेल्टिंग पॉइंट 373 केल्विन है। केल्विन स्केल -273 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है अभी आपको नहीं जानेंगे। उस समय माना जाता है कोई इतना ठंडा करेंगे, इतना ठंडा करेंगे, इतने कम टेम्परेचर पर जीरो हो जाएगा वॉल्यूम, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये केवल इमेजिन किया हुआ है। So this is known as absolute zero temperature and you will learn more about this in higher standard. Okay, these are the scales। अब क्या है कि यदि हमें मीटर को सेंटीमीटर बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। किलोमीटर को माइल, 5 किलोमीटर इक्वल टू 3 माइल, ऐसे होता है, रिलेशन होता है। सो देयर इज अ रिलेशन अमंग द डिफरेंट यूनिट्स। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो उसको आप 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें 32 ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री को बोलेगा फ़ारेनहाइट में लिखने के लिए, तो 45 इंटू 9/5, तो 5 9 जा 45, 9 9 जा 81 प्लस 32 आंसर। सिमिलरली यदि फ़ारेनहाइट है, उसको बोलेगा फ़ारेनहाइट को आप डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए कीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पर 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, 41 माइनस 32 9 9 इंटू 5/9, तो 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये डिग्री दिया हुआ है, केल्विन बदलेगा बोलने के लिए, केल्विन बनाने के लिए तो मान लीजिए 10 डिग्री दिया हुआ है, केल्विन में लिखेंगे तो 10 प्लस 273 ऐड कर देंगे। केल्विन से दिया हुआ है, डिग्री में लिखना है तो 273 माइनस कर देंगे, ठीक है। सो दीज आर द स्केल्स। Now, process of change of states of matter. We'll discuss this in the next video.